Good morning, dear students. Welcome to the class. And today we are going to understand a poem which is Daffodils. It is written by William Wordsworth, and it is the most famous and popular poem of William Wordsworth. The poem is all about the beauty of nature, because Wordsworth is often called as a nature lover, and this poem is a very popular, and we can say it is the masterpiece by William Wordsworth. It's a very beautiful poem. Let us read the poem and understand it. Daffodils, as you can see in the picture, is a name of a flower, a yellow flower, which is very beautiful, and he just writes about it only in the poem. Let's get started. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd of a host of golden daffodils beside the lake and beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So the poet wants to say that he was traveling aimlessly, just like a cloud over hills and valleys of the mountainous lake in England. पोएट कहते हैं कि आई वैंडर्ड मतलब होता है घूमना, फिजूल में ऐसे बिना किसी काम के घूमना, कि जैसे एक क्लाउड जो है ना वो वैलीज़ के और माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड एमलेसली बस घूमता रहता है इधर से उधर, बिल्कुल उस क्लाउड की तरह मैं भी घूम रहा था. And at that time what happened, he came across a large number of golden daffodils beside the lake and under the trees. और तभी घूमते घूमते उनको क्या मिला, लेक के किनारे से और पेड़ों के नीचे उनको छोटे छोटे गोल्डन डैफोडिल्स एकदम लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में उनको डैफोडिल के फ्लावर्स उनको दिखे. द फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और जैसे जैसे धीरे धीरे हवा चल रही थी, उस हवा के साथ साथ जो वो फ्लावर्स थे वो भी हवा में डांस कर रहे थे और फ्लटर कर रहे थे, हवा के साथ इधर उधर हिल रहे थे. कंटिन्यूस and as the star that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. And the poet, he directly compares himself to a cloud, as if he was wandering without aim, just like the clouds. So as I have already told you that जो poet है वो उनको अपने आप को एक क्लाउड से कंपेयर करता है और बोलता है जैसे क्लाउड्स जो होते हैं वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही घूम रहा था. So the next stanza, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. He says that the flowers are compared to the stars. Flowers को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, स्टार्स से कंपेयर किया है. They stretched in continuous line just like the stars in a galaxy like the Milky Way. जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें जैसे स्टार्स लाइन टू लाइन लगे रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिल्कुल उन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स की तरह ही डैफोडिल के फ्लावर्स जो हैं वो भी उगे हुए हैं. Moreover, the daffodils were shining as if they were golden in color and twinkling as they were fluttering in the breeze as the star. और वो ये भी कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर लाइक शाइनिंग. डैफोडिल्स जो हैं क्योंकि वो गोल्डन कलर के, गोल्डन येलो कलर के होते हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शाइन कर रहे हैं स्टार्स की तरह. और क्योंकि वो हवा में इधर उधर हिल रहे हैं, इधर से उधर गिर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, तो ट्विंकलिंग कर रहे हैं. दिस कंपैरिजन विद द स्टार्स में हैव अ ग्रेटर इम्प्लीकेशन इन इंडिकेटिंग दैट फ्लावर्स आर हेवनली एज अ स्टार. और ये शायद वो ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से स्टार्स जो हैं वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही अद्भुत होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं, वैसे भी फ्लावर्स भी अपने आप में बहुत यूनिक होते हैं. दे हैव देयर ओन ब्यूटी. फिर वो कहते हैं दैट 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. And he says that they stretched in never-ending line along the margin of a bay. He says that the flowers were visible as far as the poet could see along the shoreline of the bay.
दैट इज़ वाई ही यूजेस द फ्रेज नेवर एंडिंग लाइन। वो कहते हैं कि फ्लावर्स जो थे वो इतने सारे थे कि जितनी दूर तक उनकी नज़र जा रही थी वहाँ तक फ्लावर्स उगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने इस फ्रेज़ का यूज़ किया है, जिसका जो कि है नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन। क्योंकि ये बात क्यों बोली है, हालांकि सचमुच में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे वो देख रहे हैं तो उनकी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक उनको डैफोडिल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने नेवर एंडिंग लाइन फ्रेज़ का यूज़ किया है। एंड यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स की ब्यूटी है उसने पोएट पर बहुत एवरलास्टिंग इम्पैक्ट डाला है, और उसने पोएट के मन पे बहुत गहरा एक छाप डाली है, और बहुत ज़्यादा वो जो फ्लावर्स हैं उनको देख के वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उन्होंने डाला है अपना, इसीलिए जो पोएट है वो उनकी ब्यूटी में बहुत खो गया है, और इसीलिए इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन व्हेन ही सेज 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, वो कहते हैं कि एक नज़र में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे 10,000 फूल दिखाई दे रहे हैं, तो ये एग्जैजरेशन है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के वो बोल रहे हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द पोएट हैज़ नेवर सीन सो मैनी डैफोडिल्स एट वन, सो ही इज़ ओवरजॉयड। ओके, तो क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पोएट ने पहले कभी इतने सारे डैफोडिल्स को एक साथ नहीं देखा है, इसीलिए आज जब उन्हें इतने सारे डैफोडिल्स दिखाई दिए तो वो एकदम से ओवरजॉयड हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये एग्जैजरेशन जो है वो यूज़ किया है। एग्जैजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोलते हैं उसको हम हाइपरबली कहते हैं, ठीक है। He also says that the daffodils were tossing their heads as if they were dancing in happiness। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जब कोई पौधा हिलता है तो आप देखते हो ना, उस सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है या फिर जो फ्लावर होता है वो इधर से उधर अपने आप को इधर से उधर झड़कता है ना, कभी इस साइड है, कभी राइट, कभी लेफ्ट, ऐसे करके वो अपने हेड को टॉस करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो खुशी में डांस कर रहे हैं। एक्चुअली द पोएट वॉज अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स, और एक्चुअली बात बस इतनी सी थी कि पोएट जो है वो इन फ्लावर्स की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गए थे, एंड दैट इज़ वाई ही फाउंड एवरीथिंग अराउंड हिम जॉयफुल। इसीलिए उनको अपने आसपास सारी चीज़ें जो थी वो जॉयफुल नज़र आ रही थी, और इसीलिए वो इतने खुश थे। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगले 2 स्टैंजास हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। कीप्स अंडरस्टैंडिंग, बाय बाय।